Very good evening to all of you. This is our answer rating program, and you people have joined this program, and you will be together. We will be together for the next 6 months. And under this program, what we will do, we will highlight everything. We will explain to you in today's class that what will be done and when it will be done. This program is for 6 months and specifically for learning answer rating. It is not about something that we are preparing you for mains paper. No, we are actually exposing all the answer writing fundamentals which are very much essential for the UPSC or various state PCS examination. Here in this program, you will learn only the fundamental parts. That these are the fundamentals which are very much required. After completing this program, you will be able to write answers very well. But after that, after completion of this program, you are free to join any mains test series which you want. That I want to join this coaching institution or this coaching institution for mains test series. That is up to you. Here we are just going about the fundamentals of answer writing. And this is a 6 months long program which will deal with each and every aspect which is required for the UPSC examination and to make you competitive. Usually what happens, you leave this preparation aside and just focus on prelims part. But prelims part is only about collecting information or consolidating knowledge. But using of that knowledge will be actually happens to be through this answer rating program, where you will see that you will apply your understanding in the real time applications. Here we will deal with 120 questions from GS1, GS2, GS3, GS4. These four papers, GS1, GS2, GS3, GS4, 30 questions from each GS paper. And we are supposed to cover all the topics which are part of the UPSC syllabus. We have matched these 120 questions with the UPSC syllabus so that you also cover your GS part. In this program, I will elaborate each part that how the program will go. So before that, I start my presentation of the today's orientation class. I would like to highlight that this is the least cost program in the market, and you are getting what every other student in big institutions getting. You getting competitive, in a competitive sense, you are getting everything what the bigger institution giving you in the market. I am myself Firoz Khan with lots of years of experience of more than 15 years. I have worked with every coaching institution except Forum IS and Vision IS. All the coaching institutions I have worked with, which are very established and old, not the recent one which now you see in market. I in the field of answer rating program, I have a very elaborate experience of handling each and every part, focusing on each and every part which is very much required. This year itself, for the mains examination, I am associated with more than 400 students who are writing mains paper only. And you won't believe that the common problem in every student is only one, that they don't read question properly. So to address this part, we have designed this program that will really help you in tackling all the skills which are required and developing your artistic skills, how to write the point in that particular question. This is the very important program. If you do it seriously, definitely you will learn it. However, if we are teaching something and if you are not sincere, not dedicating yourself to the program, it will be very difficult for you to learn this part, because this part requires complete selflessness, complete dedication and commitment. These are three important values which you should utilize for this program till the time we are associated. You will be able to access all the videos which will be there on your platform till the program exists, right? This is the very elaborate program. In that
in that cost we have tried to provide you as much as which a student in very reputed institution in the market getting. And you will see, you will compete, and you will see that what others are getting and what you are getting, and you will be able to compete all those who are competitive in the exams. So before wasting our time, one more thing I would like to highlight, and then after that I would like to start my presentation for the program, that what we will do in that program. Whoever now wants to join, they can join and talk to Tanveer sir. And this is seriously, if you are thinking that two people can join together, this is a waste of time for these two people. One important reason for that, because if two people have joined, only one student can write their answers and their copies will be evaluated, not the two students. If you think that half of the questions will be practiced by another student, half of the questions will be practiced by another student, this is again a suicidal thought. If you are wasting your money on your luxury, on your lavish lifestyle, what about 3,900 for this program, which can change you forever? I think this is not a big deal. We have tried to minimize the cost as much as. Otherwise, this program would have been costing you. I talked to Tanveer said that within that cost, this program won't be able to uh, execute it. But still, we are doing it because we want you to get success. We want that you get a flame, and you see that flame that is burning you, that is lightening you from everywhere, not burning you, but lightening you in your thoughts, lightening you in terms of being competitive. So this is this is something which I would like to highlight before I start my presentation. So let's don't waste our time, let's start our presentation. I will just show you, right? This is the whole program. I will share this document with Tanveer sir, and Tanveer sir will share it with you on your portal, right? This is actually, we have divided this whole program in weeks, right? Starting from week 1, week 2, week 3, week 4, week 5. So like that we have 26 weeks for this program. We will be associated with you for 26 weeks. In that course of time, I'm available with you for every query of you. If you don't get anything out of it, I'm available there, and you can connect with me for any problem or any query that something I'm not able to get this, sir, how to do that. So for that, we can connect over phone, we can connect over WhatsApp or whatever means, right? So we have designed this program in weeks. In weeks. We have 26 weeks, and we try to cover all the topics of the GS, GS1, GS2, GS3, GS4, right? 26 weeks. We will be there in this program till 14th of February next year. You joining today, and we are connected with you till next year, 14th of February, under this program. However, we will always be available with you even after this program. If you're getting any problem regarding this, we can definitely connect and we can address your queries at that point of time also. But writing answers and evaluating it has a cost. So that has to be done through the program only, right? So this is the broad structure, vertical wise, that we have divided the whole syllabus into the weeks. And after that, what we have done, we have this horizontal separation, right? Subject, topics to be covered, the content. We will be providing you content before we will provide you questions for testing, right? So there will be content which will be provided to you for every week. There will be questions based on GS, which are designed in a way that you are able to address all the aspects of the questions which are required fundamentally, right? There will be a submission date for you, that you will write your answer. There is a submission date, and there is a evaluated copy written date and a discussion on your evaluated copies. The whole structure is like that. You are provided a content,
and on the basis of that content you will get 5 questions every week. The purpose is only learning. Purpose is only, please keep remember this, the purpose is only learning part, that what is answer writing, what are the things that is to be covered, what are the skills which are required for this program. This is the objective of this program. Again I am telling you, this is not the testing of you, that just like we do it in test papers, that we're writing full length test. This is not the full length test type of course. This is the learning, that you will learn how to write. What is first, you will be exposed to the skills which are required for this program, for basically answer writing, and after that brushing of that those skills which are very much required for writing a good point, writing a good articulation, what we call it articulation, that you express in few words more. This is what is required, what is required of you, that you use less words and write more. So these are the two important part of this program, that exposure to the skills and then artistic learning or artistic evaluation of your point, right? So now we will start with first week. First week is about fundamentals. We will let you know that what are the fundamentals which you need to practice in all the weeks. So first week, what we will do, we will take first 5 classes, 5 days, 5 classes. Today is Monday, the orientation class, and next 18th of August will be done a decrypting questions. This is the अच्छा हिंदी में बोले, ओके ठीक है, कोई नहीं, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, थोड़ा सा फ्लो रहता है कि बाइलिंगुअल रखना था. आई एम सॉरी, सीरियसली सॉरी. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, तनवीर सर. This is very good part of you, that you always help me. हाँ, राइट. प्रोग्राम देखिए, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, हिंदी में भी बता देता हूँ. थोड़ा सा फ्लो में रह गया, मैं हिंदी यूज नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट. द जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आंसर राइटिंग के लिए, उन स्किल से आपको एक्सपोज करेंगे और फिर उन स्किल्स को ब्रश अप किया जाएगा. 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फर्स्ट इज एक्सपोजर टू द स्किल्स एंड द सेकंड इज टू द पॉलिशिंग ऑफ दोज स्किल्स, कि आप उन स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज करें. हमने पूरे सिलेबस को 26 वीक्स में डिवाइड कर दिया है और हर वीक में आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसके लिए हम आपको एक कंटेंट प्रोवाइड करेंगे. वो कंटेंट आप पूरा वीक पढ़ेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे. अपने आंसर्स को आप सबमिट करेंगे, फिर हम उसको रिटर्न करेंगे और उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये आपने क्या किया और क्या होना चाहिए था, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और क्वेश्चन की डिमांड में गैप है या नहीं है. हमारा जो मकसद है, अल्टीमेट मकसद यही है कि आप अपने थिंकिंग पार्ट को चलाना सीखें, उसको यूज करना सीखें. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अगर आप आंसर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है और आप क्या समझे. अगर आप अच्छा समझे तो आप अच्छा आंसर लिखेंगे, अगर आप गलत समझे तो आप गलत आंसर लिखेंगे. तो इन चीजों को सही से करने के लिए वी हैव सो मेनी फंडामेंटल्स विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द आंसर राइटिंग और राइटिंग अ गुड आंसर. उसके लिए मैंने क्या किया है, जो पहला वीक है उसमें सिर्फ मैं एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा, जो कि लर्निंग ऑफ स्किल्स होगा. वहां पे आपको स्किल्स बताए जाएंगे, स्किल्स समझाए जाएंगे. जो पहला वीक है, आज मंडे है ओरिएंटेशन, उसकी जो सैटरडे तक जो क्लास रहेगी, उसमें हम आपको एक्सरसाइज बेस्ड क्लासेस रहेंगी. तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है डिक्रिप्टिंग क्वेश्चंस. इसकी एक्सरसाइज हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजों को आपको देखना है, इसमें कौन कौन सी चीजों को आपको देखना है.
और उसके बेसिस पे हम आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, और वो एक्सरसाइज आप जब उसको अटेम्प्ट करेंगे उसमें हम आपकी गलतियों को और सही पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको वाकई में वो एक्सरसाइज जो स्किल्स हमने इसमें सिखाए हैं वो आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। राइट। नेक्स्ट डे हमारी सेकेंड एक्सरसाइज होगी अराउंड कमांड वर्ड्स। यहाँ पे हम कमांड वर्ड्स को सीखेंगे, जितने भी कमांड वर्ड्स होते हैं, डिस्कस, डिस्क्राइब, एनालाइज, एग्जामिन, इलिस्ट्रेट, एलुसिडेट, जितने भी कमांड वर्ड्स हैं उनकी एक्सरसाइज, उनको पहले हम सीखेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज हम आपको देंगे, जैसे आज हमने क्लास ली डिक्रिप्टिंग क्वेश्चंस, तो उसकी एक्सरसाइज हम आपको उसी दिन प्रोवाइड करा देंगे और अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको वो सबमिट करनी है। क्योंकि हम ये कॉपीज आपको रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। तो ये जो पूरा फ्लो होगा, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा, प्लान्ड वे में चलेगा। एक्सरसाइज की क्लास होगी, एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, आप अगले दिन 10 बजे तक, मॉर्निंग के 10 बजे तक एक्सरसाइज को सबमिट करेंगे। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, डोंट वरी, बहुत ही छोटी एक्सरसाइजेज हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, पहले उन स्किल्स को प्रैक्टिस कराएंगे, फिर इन स्किल्स की एप्लीकेशन जब हम लेटर ऑन, जब हम आपको 5 क्वेश्चंस देंगे जिसमें आप पूरे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखेंगे, वहां पे इनको अप्लाई करेंगे। राइट। तो पहला काम क्या है, एक्सरसाइज। दूसरे दिन क्या रहेगा, कमांड वर्ड्स। राइट। कमांड वर्ड्स फिर उसकी एक्सरसाइज देगी, अगले दिन तक आप इसको सबमिट करेंगे। ठीक है। 20 अगस्त को फिर नेक्स्ट क्लास होगी कंटेंट एक्सरसाइज। राइट। कमांड वर्ड्स आपको पता है, सॉरी, डिक्रिप्टिंग क्वेश्चंस, कमांड वर्ड्स, तीसरा है कंटेंट एक्सरसाइज। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है जो मैं आपको क्लास में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको प्लान का ओवरव्यू दे रहा हूँ, हाईलाइट दे रहा हूँ, उसके अंदर क्या है वो चीजें एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा। राइट। तो एक्सरसाइज 3 होगी कंटेंट एक्सरसाइज, फिर ये नेक्स्ट डे तक आपको सबमिट करना है। इसी तरीके से हमारी फोर्थ जो एक्सरसाइज होगी, दैट विल बी इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन। क्योंकि यही हमारे इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स हैं हमारे आंसर्स के, जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। ये 3 पार्ट्स को एड्रेस करना है और इन 3 पार्ट्स के लिए हमें स्किल्स डेवलप करने हैं, जो कि हम इंडिविजुअली करेंगे। हम अपनी आंसर राइटिंग को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे, इतना इजी कर देंगे कि आपको लिखते वक्त कभी माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करेगा। राइट। मतलब कि विशफुल थिंकिंग नहीं है कि बस चाहा और हो गया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। राइट। अब जैसे हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है कंक्लूजन की, आप इसको 23 अगस्त बाय 10 AM सबमिट कर देंगे। राइट। उसके बाद हमारा जो सेकेंड वीक स्टार्ट होता है, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट वीक खत्म हो गया। राइट। हमारा जो सेकेंड वीक है, मंडे 24 अगस्त, मंडे 24 अगस्त, हर संडे आपका ऑफ रहेगा, वो छुट्टी रहेगी। राइट। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सभी को संडे एटलीस्ट चाहिए। स्क्रीन पूरी आ रही है ना? राइट। सेकेंड वीक क्या होगा, अब यहां से हमारा GS1 स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, पूरा सिलेबस डिफाइन कर दिया है, ये सिलेबस है। और यहां से आपको इस पूरा हफ्ता, देखिए 24 से लेके 30 अगस्त तक ये पूरा वीक है। राइट। ये पूरा वीक है और इस वीक के लिए हमने ये सिलेबस डिफाइन कर दिया है। अब ये जो सिलेबस है हम आपको 24 तारीख को देंगे, 24 तारीख को। और जब ये वीक आप पूरा पढ़ लेंगे, 30 तारीख तक, 24, 29 तारीख को हम आपको 5 क्वेश्चंस दे देंगे। हर चीज की डेट मेंशंस है। देखिए ये वाला जो कॉलम है, दिस कॉलम इज कंटेंट प्रोवाइडेड। इस डेट को हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे
और ये वाला जो कॉलम है, दिस इज ऑफ जीएस क्वेश्चंस टेस्ट, जीएस क्वेश्चंस टेस्ट पेपर। इसमें हम आपको 5 क्वेश्चंस इस सिलेबस के बिहाफ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट ये चलेगा हमारा, देखिए आपको अपने आंसर्स अगले दिन 6 बजे तक 30 अगस्त तक सबमिट करने होंगे। हर चीज यहाँ पे डिफाइंड है कि कब कौन सी चीजें पूरी होनी है। अगर आपने इसमें कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखा दिया, 100% मैं गारंटी देता हूं कि मिनिमम आप 60 to 70% लर्न जरूर करेंगे। 100% की देखिए कोई गारंटी नहीं दे सकता है, और मैं भी नहीं देता हूं, क्योंकि लर्न आपको करना है, आपको सीखना है। जितनी मेहनत आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। हम यहाँ से सिखाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आपको सिखाएंगे, और पूरी डेडिकेशन के साथ जो चीजें आपको चाहिए वो 100% आपको देंगे। और बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ एसए के प्रोग्राम में भी जुड़े हुए थे, और उन्होंने देखा होगा कि हमने कितनी मेहनत की है उस वक्त। मैंने अपनी जिंदगी में इतने एसए इतने कम टाइम में कभी चेक नहीं किए, सिर्फ आप लोगों के लिए किए। पूरा दिन रात मैं लगा रहा था, वो तनवीर सर आपको बता सकते हैं, राइट? कभी नहीं करे। ऑलमोस्ट 1 महीने के पीरियड में आई चेक्ड मोर देन 1000 एसेज। वो मेरे लिए मेरे लिए भी खुद एक अलग एक्सपीरियंस था, बट सीरियसली वी डिड इट। और इसी डेडिकेशन के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ ये जो जीएस का पेपर है, अगर मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरी बातों को मान के चला और करा और ईमानदारी से करा, so definitely you are a competitor in the UPSC examination for the mains exam। यहाँ हम सिर्फ मेंस की बात करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स। सिर्फ मेंस की मेरी एक्सपर्टीज है और मेंस का ही मैं पूरा कुछ कराता हूँ, राइट? सो जीएस हिस्ट्री हर चीज डेट इसमें डिफाइंड है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है, दिस इज आपकी ये कॉपी रिटर्न हो जाएगी और उसी दिन टेस्ट डिस्कशन होगा, दैट इज ऑन 5 सितंबर। क्लासेस की हमारी टाइमिंग 9 PM है और 8:45 9 PM यही रहेगा, और यही पूरे प्रोग्राम में हमारा इंशाल्लाह चलता रहेगा, राइट? अब ये फर्स्ट वीक है आपके, देखिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रोग्राम में, आप आंसर राइटिंग लर्निंग तो कर ही रहे हैं, आप पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर रहे हो, पूरा सिलेबस भी पढ़ रहे हो। और हम ये चाहते हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप यूज करो, उस नॉलेज को यूज करो। आंसर राइटिंग का असल मकसद यही है, पर्पस यही है कि आपने जो नॉलेज गेन की है वो वेस्ट है अगर आप आंसर्स नहीं बना पाते हो। तो हम आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देना चाहते, सिर्फ 5 क्वेश्चंस हम पर वीक देंगे ताकि आप सीखे ज्यादा, हम आपको अच्छे से फीडबैक दें। और इसीलिए हमने क्या किया है, हम 30 बच्चों से ज्यादा इस बैच में, किसी भी बैच में 30 बच्चों से ज्यादा मेंबर्स नहीं रखेंगे, ताकि हम हर बच्चे पे बहुत ही डेडिकेटली फोकस कर सकें। ये एक बहुत अच्छी बात है जो तनवीर सर ने और मैंने सर ने डिस्कस करके इस कंक्लूजन पे आए हैं कि हम जितने, मैंने बोला था सर को कि जितने कम बच्चे रहेंगे उतना ही हम ज्यादा उन पे फोकस कर पाएंगे, उतना ही उनको सिखा पाएंगे और उतना ही वो अप्रिशिएट कर भी पाएंगे, राइट? सेकेंड वीक ऐसे ही है, फिर सेकंड वीक का पूरा सिलेबस डिजाइन है, उसी पे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस आप ये देखना कि यूपीएससी स्टैंडर्ड के हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो यूपीएससी स्टैंडर्ड से नीचे हो, पर इनिशियल क्वेश्चंस हम इजी रखेंगे ताकि आपको लिखने में एक शुरुआत हो, एक मोमेंटम बने। धीरे धीरे वो लेवल जो है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, राइट? सो आई होप कि आपको ये प्लान पूरा वर्टिकल समझ में आया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी आपको समझ में आया है। हर वीक डिफाइंड है। हम पहले GS1 पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम GS2 कंप्लीट करेंगे, ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आंसर राइटिंग को लर्न करना चाहते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम पूरा सिलेबस याद करें, कि कभी ये करें कभी वो करें। हमारा ये है कि हम हर टॉपिक को ऑर्डर में ही लेके चलेंगे जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आते हैं, राइट? GS2 GS3 और पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे मैक्सिमली उसमें डालने की कोशिश की है। अब रही बात एथिक्स की, देखिए एथिक्स आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये मैंने तनवीर सर से भी बात की थी कि जैसे हम जीएस पेपर के लिए आंसर राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें एथिक्स भी रहना जरूरी है, बट
अगर किसी का एथिक्स टॉपिक कंप्लीट नहीं है और उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, हाउएवर हम उसको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर वो पढ़ पाता है, उतने कम टाइम में समझ पाता है, तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट है, एक बहुत बेहतर बात है। अगर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो इन चीज़ों को नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे जब ये वाला पोर्शन आएगा, उसको हम तब देखेंगे कि उसको और बेहतर तरीके में, ताकि आप उसको भी सीख सकें, राइट? उसको भी कर सकें। तो उस पोर्शन को हम तब देखेंगे, और हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, थ्योरी और केस स्टडीज़। हम इसमें थ्योरी भी कराएँगे, थ्योरी के क्वेश्चंस भी कराएँगे, और केस स्टडीज़ भी आपको करना सिखाएँगे, राइट? सो लास्ट वीक विल बी 18 टू 14 फ़ैब, जहाँ पे हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस को वाइंड अप करेंगे, एंड दैट विल बी द टाइम जब आप देखेंगे। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आंसर राइटिंग में जितने आप पेशेंस रखोगे, उतना ज़्यादा सीखोगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही पेशेंटली सीखना है, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करनी है, समझने की कोशिश करनी है, और दिमाग को चलाना करना है, दिमाग को चलाना है, माइंड वर्क करना चाहिए। अगर वो नहीं काम करेगा तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, राइट? इसमें इसमें एथिक्स वाले पार्ट में हमने फिलहाल 5 ही क्वेश्चंस रखे हैं, बट हम इसके क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देंगे ताकि हम इसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो इस प्लान को थोड़ा-सा हम रिवाइज कर देंगे, वो अभी ये प्रॉब्लम मैंने अभी आइडेंटिफाई की है, राइट? तो प्लान तो बनता है और वो इम्प्रूव भी होता है। एक प्लान बन गया और उसको हम फर्दर इम्प्रूव भी करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कैसे दी जा सकें, राइट? सो दिस प्रोग्राम, इसमें हमने पूरे सिलेबस, एक्चुअली हमने एथिक्स थ्योरी के यहाँ पे सिलेबस को नहीं लिखा है। इसमें हमें सिर्फ अभी ये अपडेट करना है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बढ़ जाएँगे, राइट? हाउएवर हम ये प्लान कल से स्टार्ट कर देंगे, राइट? फर्स्ट वीक से लेके 26 कल से हमारा फर्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा, राइट? और स्टूडेंट बनकर आना, टीचर बनकर मत आना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस यूपीएससी फील्ड में या स्टेट पीसीएस फील्ड में यूपीएससी फील्ड में बच्चे के पास टीचर से ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ता है, और टीचर सिर्फ एक फोकस्ड एरिया पे काम करता है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज होती है। तो आप इस चीज से जरूर बचेंगे। अपनी अपने टैलेंट आपको सीखना है, यहाँ पे स्किल्स एक्वायर करने हैं, तो आपका फोकस सिर्फ उसी चीज पे होना चाहिए, रादर देन कि ये बताने के लिए कि टीचर मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो इस चीज से बहुत ज्यादा आपको बचना है, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन, जिसमें हम आपके साथ क्या क्या करेंगे वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और ये प्लान हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। और अब इसके अलावा 2-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं, उनको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा। हाउएवर उसकी हम एक पीडीएफ फाइल भी प्रोटोकॉल की फॉर्म में, नॉर्म्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको वो डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करने हैं। आप अपना आंसर लिखेंगे, उस पे आपका नाम, फ़ोन नंबर, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है विद इंस्टीट्यूशन, ये 3 चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। जिसकी कॉपी पे ये 3 चीज़ें मेंशन नहीं होगी, उसकी कॉपी को हम उस टाइम पे इवैल्यूएट नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी साइड से हैं, ताकि हम आपको आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ये आप ही हैं, और आपके रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को हम ग्रेजुअली देख सकें कि वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस में, तो हम क्या और एफर्ट्स लें ताकि आपकी परफॉर्मेंस
और इम्प्रूव हो जाए। तो ये जो कुछ चीज़ें, प्रोटोकॉल्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क। मैं अपने फ़ोन से अभी ज्वाइन कर लेता हूँ और आप अपने मैसेजेस को टेक्स्ट कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस करें, क्वेश्चंस टेक्स्ट करें। बाइलिंगुअल, द क्लास विल बी इन बाइलिंगुअल। हावेवर जो इवैल्यूएशन होगा वो मेरी साइड से सिर्फ इंग्लिश कॉपीज का होगा। आई विल कीप इट बाइलिंगुअल सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, कि थोड़ा सा गैप ना रह जाए अंडरस्टैंडिंग में, सो दैट। सर अब जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे हमने उसी को पढ़ना है या फिर अगर हमने पहले से कवर कर, देखिए हम आपको सिलेबस दे देंगे, अगर आपने वो पहले से पढ़ रखा है तो आप को वो कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हावेवर वो पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी होगी, आप उसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अगर आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है, बट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरे सिलेबस को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं, जो स्टैटिक पार्ट है, राइट। दिस इज फॉर रियाज अंसारी। नहीं, आपने जो पढ़ रखा है उससे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। नहीं ही ना, इसमें ऐसे प्रोग्राम नहीं है, दैट इज टोटली अ डिफरेंट वर्टिकल, उसके लिए अलग एफर्ट्स चाहिए होते हैं। सर इज 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोवाइडेड, यस। अस्मित राय, इसमें आपके पास 1-to-1 मेंटोरशिप है, राइट। जुडिशरी के लिए आप तनवीर सर से बात करें, अभी हम एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं। अरविंद कुमार, शुड वी डू टेस्ट विद इन 20 to 40 minutes और ट्रीट इट एज एन असाइनमेंट? देखिए अरविंद, ये आपके ऊपर है कि आप उसको हम आपको टाइम देंगे कि इतना टाइम में आपको अपना आंसर लिखना है, वो आपके पास कॉपीज पे रहेगा। हम आपको उसकी शीट्स प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, अदर इम्पोर्टेंट बात जो मैं भूल गया बतानी, वो ये है कि हम आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे, आप उसको प्रिंट कर लें प्लीज। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो प्रिंट भी कर लें। ऐसा ना करें कि अपनी कॉपी से पेज निकालें जो लाइंस वाली रहती हैं और उसी में आंसर लिख रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, उसको प्रिंट करा के उसमें लिखें, प्रॉपर अपना नाम लिखें, उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको सारी मिल जाएंगी। शुड वी स्टडी पीवाईक्यूज बिफोर अटेम्प्टिंग द टेस्ट? अरविंद, ये आपके लिए है, हम यहाँ पे आंसर राइटिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ टेस्ट। हम यहाँ पे आंसर राइटिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं, आपको ये डिफरेंस समझना होगा। वी आर नॉट टेस्टिंग यू, वी आर डेवलपिंग योर स्किल्स टू राइट आंसर्स। नौसर आलम, हाउ मेनी क्लासेस पर वीक? नौसर, 1 क्लास पर वीक रहेगी, जो डिस्कशन होगा, जो अ, आपका डिफाइंड सिलेबस है उस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बिहाफ पे सिर्फ एक क्लास होगी जो इलेबरेट होगी, जिसमें हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, हर चीज को समझाया जाएगा। हमने प्रेशर बहुत कम रखा है कि आपकी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो चलती रहे, और साइड बाय साइड ये आंसर राइटिंग का हफ्ते में छोटा सा पार्ट हमने आपके साथ डाल दिया, राइट। आपको प्रेशर भी नहीं आएगा, बर्डन भी नहीं आएगा। सरफराज, सर तनवीर सर का कांटेक्ट नंबर, हाँ तनवीर सर का नंबर तो कहीं से भी ले लीजिए, यूनिवर्सल आदमी है भाई, वी टू मीडिया के स्टार प्लेयर हैं। उनके यूट्यूब चैनल से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, वेबसाइट से ले लीजिए।
काजल सर, क्या अदर इंस्टीट्यूट के आंसर्स भी वैल्यूएट करा सकते हैं क्या इस कोर्स में? सॉरी काजल, वो कॉस्ट आपको लग जाएगी, आप करा सकते हो बट दैट इंक्लूड्स अ कॉस्ट। इस प्रोग्राम में हम नहीं कर सकते। ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस पर स्टूडेंट, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक बच्चे के 130 मल्टीप्लाई बाई 30, मैक्सिमम इस बैच में हम 30 बच्चों से ज्यादा नहीं लेंगे। दिस इज आवर कमिटमेंट। अगर हमें बच्चे हमारे पास रिक्वेस्ट ज्यादा आती हैं सो हम अलग बैच स्टार्ट करेंगे, पर इस बैच के साथ उसको मर्ज नहीं करेंगे। ओनली 30 स्टूडेंट मैक्सिमम लिमिट। सीबीएसई की स्कूल्स में लिमिट चलती है 40 स्टूडेंट्स पर क्लास। हमने उसको रिड्यूस करके 30 कर दिया है ताकि इफेक्टिवनेस और इंक्रीज हो जाए। मैविश उस्मानी सर, मेरा तो स्टैटिक भी कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी से आंसर राइटिंग शुरू कर दूं? तो ये यहाँ पे हम देखिए ना, आपको पहले कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, वो स्टैटिक पार्ट पढ़ना है, उसी के साथ आपको आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप कर लीजिए, पैरेलल चला लीजिए, आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। दिस इज फॉर मैविश। इट विल बी मॉडरेट और अबव दैट, मतलब कि आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो यूपीएससी के लिए जरूरी है। ये कंटेंट देखो, कुछ स्पेशल तो हमने किया नहीं है, हमने भी अदर रेफरेंस बुक से ही उसको कंपाइल किया है, कंसोलिडेट किया है, और उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप इसको दोबारा से भी पढ़ लें और उसके बेसिस पे आप अपनी आंसर राइटिंग को डेवलप कर लें। देखिए, पर्पस है सिर्फ आंसर, आप मटेरियल नहीं पढ़ना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। अगर आप ऑलरेडी जीएस पार्ट कर चुके हैं, दैट इज एंटायरली अप टू यू कि आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस टेस्ट करना चाहते हैं। सर मैं लिखूंगी और लिखूंगा और मुझे बता दीजिए कि मेरी आंसर राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, ये भी हो जाएगा। वो आपके ऊपर है, हमने आपको ऑप्शन दिया है। आप इसके थ्रू चलेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अपने थ्रू चलेंगे तो फिर वो रिस्क आपका है। ज्यादा ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं रहेगा, हमने उसको वी ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। अभिषेक, सॉरी फॉर आस्किंग सर, मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, इंटरनेट स्लो है, क्या आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे? ये तो पूरा जो प्रोग्राम है आपके, आपका प्रॉपर पोर्टल डेवलप होगा। उस पोर्टल में ये जो वीडियोस जो हम ले रहे हैं, जैसे जैसे लेक्चर्स होते चले जाएंगे और प्रोग्राम बढ़ता चला जाएगा, जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में टिल दी कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। उसकी एक डेडलाइन है, उसके बाद वो वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं रहेंगी। हावेवर वो वीडियोस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है उसमें, और जब तक हमने उसमें डेट डाली है, तब तक वो आपके पास उसको एक्सेस कर सकते हो, दिन या रात, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। बट क्वेश्चंस जो 120 क्वेश्चंस हैं पर स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा इवेलुएट नहीं होंगे। दिस इज फॉर अभिषेक। अरविंद कुमार, why is GS1 given more weeks than other GS papers? हाँ, देखिए जो सिलेबस है, GS1 GS2 सिलेबस है डिफाइंड, और उसमें हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और जो एथिक्स वाला है हम उसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। तो आपकी इस बात को देखा जाएगा अरविंद कुमार कि अगर उसमें कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो हम उसको मॉडरेट बराबर कर देंगे, उसमें सोशल जस्टिस इंश्योर कर देंगे, डोंट वरी। थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस अरविंद कुमार। थैंक यू सो मच अभिषेक। थैंक यू। थोड़ा सा अपडेट चाहिए प्लान में, वो हम अपडेट कर देंगे, अपडेटेड प्लान दे देंगे, पर जो कल से हमारा वीक है ये प्रोसेस पैरेलल चलता रहेगा, उसमें कोई नहीं। एनी क्वेरी, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज ओवर टू तनवीर। सर, क्या आंसर कंप्लीट कंटेंट याद करके लिखना चाहिए या फिर आंसर कंटेंट देख कर लिखना चाहिए, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है? देखिए,
आप अपने सिलेबस को समझ लें और उससे जो आपकी समझ बनी है आपको वही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस में अपना आंसर लिखेंगे तो वहां पे आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं होगा, वहां पे सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ होगी जो आपने पूरे साल डेवलप की है। तो जाहिर सी बात है, दैट इज द गुड वे कि आप बिना देखे अपना आंसर लिखें। देखकर आंसर लिखना है तो फिर सीखने का तो कोई मतलब ही नहीं हो पाएगा। हम यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, रादर देन हम ये करना चाहते हैं कि आप आंसर लिख लें। आप उसको एक बार सीख लें, एक ही बार सीखना है, बार बार तो सीखना नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। मैविश, हाँ जीरो से सिखाएंगे, आर्यभट्ट बन जाएंगे हम, टेंशन मत लो, जीरो से ही सिखाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो फर्स्ट 5 एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5, इट मींस जीरो, राइट, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद जीरो। ये एक बहुत अच्छी कहावत है। अगर आप डायरेक्ट ये सोचें कि नहीं मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस का पेपर लिखने जाऊंगी या जाऊंगा, और फिर वहां पता चलता है नहीं लिख पाते हैं, फिर वापस से हमें बेसिक्स पे आना पड़ता है, नहीं यार अब तो आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि हम आंसर नहीं बना पाए थे मेंस में। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बाद में रियलाइज होता है कि आंसर राइटिंग को छोड़ के नहीं चला जा सकता। एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कोचिंग्स करते हैं और सोचते हैं कि कोचिंग करते वक्त वक्त जो है हमारी प्रिपरेशन हो रही है। दरअसल में कोचिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो प्रिपरेशन उसके बाद स्टार्ट होती है। जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं, जब आप चैलेंजेस को फेस करना शुरू करते हैं, असल प्रिपरेशन तो तब स्टार्ट होती है यूपीएससी की। कॉमल सर, इसमें टेस्ट भी है क्या? इसमें टेस्ट नहीं है, दिस इज अ आंसर राइटिंग लर्निंग प्रोग्राम। आप बार बार मेरी इस बात पे ध्यान दें, ये आंसर राइटिंग लर्निंग प्रोग्राम है, ये टेस्ट नहीं है। वी आर नॉट टेस्टिंग यू। अगर आप अपने आपको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी का भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एथिक्स या ऐसे में ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन लुकमान आईएएस, और कोई और जो जीएस के लिए है तो जीएस में कुछ और आप देखना चाहें, फॉरम, वाजीराम या कोई भी, जहां जाना चाहें। तनवीर अहमद, it is known that mains is the milestone in this exams, but it is also a fact that prelims is also going to harder day by day. So may you guide a little bit about the prelims in between? See, my expertise is not with prelims examination. मैं prelims का कुछ भी नहीं कराता हूँ, मेरी expertise सिर्फ mains में है। और nothing for prelims. काजल, this is for काजल, this is for तनवीर, right? काजल, काजल, क्या इस कोर्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग भी सिखाया जाएगा? एक मिनट, आंसर लिखने से पहले यस, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा कि, बट हम चाहते हैं कि इनिशियली नहीं होगा, वो बाद में होगा। बट इनिशियली हम चाहते हैं कि आप चीज़ों जो आपने सीखी है उसको अप्लाई करना सीखें, क्योंकि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और हम इस स्ट्रेटजी को इस प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि आप पहले अपने अंदर की गलतियों को आइडेंटिफाई करें, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें और उनको इम्प्रूव करें। सर, एनसीईआरटी की बुक कौन कौन सी होती है, आप बता सकते हैं? एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक, फॉर हिस्ट्री, फॉर ज्योग्राफी, फॉर इकोनॉमिक्स। 10th क्लास तक आपको सिर्फ साइंस पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है। ये तो लिस्ट आप कहीं भी देख सकते हैं ऑनलाइन, आप गूगल पे सर्च मारें यूपीएससी एनसीईआरटी बुक्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं, दैट विल बी लिस्टेड आउट। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तनवीर सर भी एनसीईआरटी कोर्स चला रहे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज फॉर अनम खान। हिना पठान, सर इस कोर्स में हर कैंडिडेट की कॉपी पर डिस्कशन होगा? हर कैंडिडेट की कॉपी पर डिस्कशन नहीं होगा, हर कैंडिडेट की कॉपी इवैल्यूएट होगी, और जो मेजर फॉल्ट्स हैं, जो सभी लोग गलतियां कर रहे हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। हमने ये चीज़ ऐसे रेटिंग प्रोग्राम में की थी, अगर आप शायद वहाँ थे, मुझे पता नहीं है।
आपने वो चीज़ देखी होगी, हमने इसको पूरा इस तरीके से किया था कि पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था ऐसे टॉपिक, फिर आपने उस पे लिखा, फिर आपने जो गलतियाँ की, उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो सभी कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ों को पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को 6 मंथ्स का रखा। नौसर आलम, सर व्हाई देयर इज़ मोर फोकस ऑन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, हम इसको चेक कर लेंगे। देयर विल बी इक्वल वेटेज टू ऑल पार्ट्स। वी ट्राई टू मेक इट इक्वल। वेटेज बराबर रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, प्लीज फॉरगिव अस फॉर दैट। यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आंसर राइटिंग सीखने का है। आपको ये आंसर राइटिंग यहाँ नहीं करोगे, जहां करोगे करना तो पड़ेगा ही, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। अगर आप यूपीएससी के लिए फाइट कर रहे हो, यू हैव टू डू दिस, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ ना करे कहीं और करे, पर करना तो जरूर, प्लीज मेरी इस बात को ध्यान रख लेना, कहीं भी करो पर कर लेना, क्योंकि आप अपना टाइम बचाओगे, आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाओगे एग्जाम के लिए, और आप अपने आप को एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाओगे। राइट। So this is all for the orientation program in today's class. From tomorrow onwards, from tomorrow itself, we will be starting our first class, which will be focusing on the exercise part, the fundamentals part, the exposure to the fundamentals. तो ये सब चीजें हम कल से स्टार्ट कर देंगे। आपसे आपसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं जैसे आप लोगों ने आरसी के ऐसे प्रोग्राम में जो डेडिकेशन दिखाया था, जो कमिटमेंट दिखाया था कि आंसर लिखना ही लिखना है, और आपने लिखा भी, कुछ बच्चों ने लेट लिखा पर लिखा जरूर, यही कमिटमेंट अगर आप यहाँ पे दिखा दें, और पेशेंस रखना, पेशेंस रखना, एक दिन में चीजें नहीं लर्न कर पाओगे। आंसर राइटिंग टेक्स टाइम। मेरे पास देखिए इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए कई बच्चे आए कि हमें ऐसे राइटिंग सिखा दीजिए, मैंने उनको आउटराइटली मना कर दिया, मैं सिखाता ही नहीं हूँ 2-3 महीने में, ऐसे राइटिंग आप 2-3 महीने में नहीं सीख सकते। ये तो एक जामिया का एक मॉडरेटेड क्यूरेटेड वर्जन था जो हमने कर लिया, एंड वी डिड इट, और वी गॉट गुड सिलेक्शंस इन आरसीए, ये भी हमारा एक अचीवमेंट है, स्पेशली तनवीर सर का, एंड कुडोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू तनवीर सर फॉर दिस एफर्ट। तनवीर सर बहुत एफर्ट लेते हैं, आपको उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जितना आप लोगों के लिए करते हैं कि बहुत, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत सस्ते में आपको, देखो सस्ता क्या है, देयर इज नो फ्री लंच। अगर आप सोचें कि हम घर से बाहर बैठ जाएं और फिर भी आपको पढ़ाते रहें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हमारी अपनी नीड्स भी होती हैं, तो मिनिमम हमें इतना चार्ज करना पड़ता है। अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो आपके अंदर सीरियसनेस भी नहीं आएगी। बहुत इनिशियली बहुत बच्चे हैं जिनको हमने फ्री दिया, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिखाया, हमने अपना कमिटमेंट दिखाया पर उन्होंने मेहनत नहीं की, तो हमारा वहाँ पे मनोबल टूट जाता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, बच्चा हमारे साथ मेहनत कर ही नहीं रहा है। तो जो ये फी वाला कॉन्सेप्ट है, वो ये इसलिए है ताकि आप भी मेहनत करें और आप अपने कमिटमेंट्स को शो करें। चले जाएंगे, समझा कर चले जाएंगे, अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। बाई taking a lead from here, I would like to end my discussion. V2 Media, 43 selections in Jamia RCA. Congratulations. अस्मित, यस, हम ऐसे का भी देखेंगे, बट अभी इसी के लिए भी कैपेसिटी ना हो, वो कैसे पढ़ेगा? किस चीज की कैपेसिटी, पैसों की कैपेसिटी या फिर किस चीज की कैपेसिटी? I have to close this session now because I had only time till 9:45. Thank you all. आप अनम तनवीर सर से बात कर लें। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।